Indian football team, led by head coach Igor Stimac, set to return on the field after the gap of 16 months as new look Indian side set to play Oman and UAE on 25th and 29th June respectively. So we are back with another tactical video where we will speak about how India will set up against Oman and UAE in the upcoming international friendly matches. Before talking about India, let's speak about Oman and UAE in brief. India played 2 games against them in the group stage of the World Cup qualifier, which is still going on. We lost our home game 1-2, in which Sunil Chhetri scored the goal, but eventually in the last 10 minutes, India committed lots of defensive mistake and we lost the lead and we lost the match also. When India went to Oman to play the away fixture, we were outplayed by them. India lost the match 1-0 and now we are playing Oman again in an international match. I think they are very good side to play a friendly, especially after so long gap, because Igor Stimac have so many new things to try, and he has a very young team this time as compared to the previous teams he have during those World Cup qualifiers. Talking especially about India versus Oman game, which both the matches which happened in the group stage, India combined expected goals of India was just 0.69 as compared to Oman's 3.01. India did not created any chances, any goal scoring opportunities in the second match which took place in Oman, our away game. And India and Igor Stimac will hope that this time around India will able to present more goal scoring opportunities to their strikers or their forward to score goals, and we create more chances. Talking about UAE, India played them in the AFC Asian Cup under Stephen Constantine, which we lost 2-0. And UAE is one of the rising football team, national team in Asia, especially considering the kind of infrastructure and facilities they have built in the country for football. And since then, their national team is not doing that well, especially considering the result they have got. They have sacked their current coach, and brought him back after 1 year gap. And the recent results are not that good, especially considering in the FIFA World Cup qualifiers group stage, they lost their matches against Thailand, which India defeated in AFC Asian Cup, in Kings Cup also. They lost against Vietnam. Vietnam, of course, it's not that surprising because Vietnam as a team has been doing well in the Asian circuit. But they just able to manage pass against Malaysia in a close encounter, and again Indonesia, they also another close encounter. So they did not, like India, they did not have had a good group stage matches till now. And after that, they also played Gulf Cup, where they lost against Iraq, Qatar, and only defeated Yemen. So that's why in that Gulf Cup also they crashed out of the group stage. And they brought the coach back, Dutch coach, who was former Netherlands coach in the 2010 World Cup. He took Netherlands to the World Cup final. He also was in charge of Saudi Arabia national team, who qualified for the FIFA World Cup 2018. Eventually, his contract with them got over just before the World Cup, so he left them. And he's an experienced coach, and that's why they eventually sacked them 1 year ago. They brought him back because of his overall experience and the kind of profiles nowadays you need for national coach. He has one of the perfect profile. If you see his success with Netherlands team and the Saudi Arabia. So let's start with Oman game first. Oman game, especially India played 4-4-2 against Oman in both the games. We have done previews for both the games. You can go to a YouTube channel, or maybe you can find the link somewhere here, or the latest game review, which India lost 1-0, and you can know about Oman in detail. So we'll not talk about Oman in much detail. Let's talk about new India, how this India might be different, especially for Oman, which considering the previous Indian team played against them, in the 2 matches recently only. If you talk about the number of matches India have played, they have not played any game since they played Oman in the away game, which we lost. So this is, again, we can say that India played them recently. Even the timeline gap is there between the matches. So this team is different. Let's talk about what the final squad which Igor Stimac announced for these 2 games. The surprise, some inclusion, some exclusion is also there. Forced exclusion of Sunil Chhetri means that India will
have either Manveer or Ishant Pandita leading the front line. So let's the 27 member squad टीम आपकी स्क्रीन पे है. कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है. गोल कीपिंग में गुरप्रीत सिंह संधू हैं, अमिंदर सिंह हैं, शुभाशीष राय चौधरी एंड धीरज सिंह. आई थिंक आप बोल सकते हो अरिंदम भट्टाचार्य इस टीम में हो सकते हैं या नवाज़ इस टीम में हो सकते हैं, बट बहुत ऑप्शंस हैं इंडिया में गोलकीपर्स के पास. आई थिंक एक ही वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम पे ऑप्शंस की कमी नहीं है. डिफेंस में आपके पास आशुतोष मेहता आए हैं टीम में, आकाश मिश्रा टीम में आए हैं, प्रीतम कोटाल टीम में पहले भी थे, फिर से संदेश जिंगन की वापसी हुई है इंजरी से बाहर निकल के, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे सेकेंड लेग में जो सेकेंड गेम ओमान के जो ओमान में हुआ था. चिंगलन साना ने एक मैच स्टीफन कॉन्स्टेंट के अंडर खेला था भूटान के अगेंस्ट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उनकी टीम में वापसी हुई है. आदिल खान ने अपना स्पॉट टीम में रखा है. एंड मंदाराव देसाई एंड मशहूर शरीफ नए कॉलर है. मंदाराव देसाई ने अपनी टीम में जगह बनाई रखी है. आशीष राय इंजर्ड थे, इनको कंसीडर नहीं किया गया. शुभाशीष बोस को कोई कॉलअप नहीं आया है. थोड़ा लाइट दिखता है इंडिया का टीम इन डिफेंस सेक्टर, स्पेशली इन द राइट बैक यू हैव आशुतोष मेहता एंड प्रीतम कोटाल क्योंकि आजकल राइट बैक अब खेलते नहीं है, ही प्लेज एज अ राइट सेंटर बैक फॉर ATK मोहन बगान. मिडफील्ड में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, बट इंडिया इज़ लैकिंग अ प्ले मेकर. जो पहले ब्रेंडन सहल दो थे इंडिया के पास, दोनों ही इंजरी की वजह से अवेलेबल नहीं थे सिलेक्शंस के लिए. बट डिफेंसिव मिडफील्डर में सब चेंजेस हैं यहाँ पे. कोई प्रणव हलदार को कॉल नहीं आया है, उनकी जगह यंगस्टर वन ऑफ द यंगेस्ट कैप्टन इंडियन कैप्टन ISL लालन मोहिया का कॉल आया है. डिफेंसिव मिडफील्ड में रॉलन बॉजिस ने अपनी जगह बनाई रखी है. जैक्सन सिंह को एक और इनको भी कॉल अप आया. रैनीर फर्नांडिस ने अपनी टीम में जगह बनाई रखी है. अनुरुद्ध थापा टीम में है. ISL में वन ऑफ द बेटर इंडियन प्लेयर दिस सीजन विपिन सिंह को भी मेडन कॉल आया है. हैदराबाद के प्ले मेकर याशिर मोहम्मद, उनको भी मेडन कॉल है. सुरेश सिंह फ्रॉम बेंगलुरु SC अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने लास्ट 2 ईयर्स में, उनको भी कॉल अप आया है. हालीचरण नाजरी की टीम में वापसी हुई है. चांगटे एंड आशिक कुरैन ने अपनी जगह टीम में बनाई रखी है. फॉरवर्ड्स थोड़ा लाइट है. नो बलवंत सिंह, नो JJ, नो सुनील छेत्री. सो आई थिंक you can say this is in recent year this is a new look Indian forward line. That's what I'm saying as a new look India, because यहाँ पे काफ़ी सारे नए नाम हैं. मनवीर सिंह अगेन वन ऑफ द बेटर इंडियन परफॉर्मर इन द इंडियन सुपर लीग जो अभी फिनिश हुआ है. उनके साथ देने के लिए ईशांत पंडित आए हैं, जिन्होंने अपनी लिमिटेड गेम टाइम में काफ़ी इंप्रेस किया है काफ़ी लोगों को. एंड हितेश शर्मा, आप इनको याशिफ ने फॉरवर्ड लिस्ट किया है, बट आई थिंक इज नंबर 10. साथ में लिस्टन क्लासो को भी मेडन कॉल आया है इस टीम में. तो काफ़ी और एक यंग टीम है. आप एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करेंगे, संदेश जिंगन, आदिल खान, गुरप्रीत सिंह संधू, अमिंदर सिंह का नेशनल टीम का एक्सपीरियंस नहीं है, बट क्लब लेवल पर उनका एक्सपीरियंस है. रॉलन बॉजिस का एक्सपीरियंस है. एंड अनुरुद्ध थापा भी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है. आप देखेंगे थापा की जो एज है आपको, तो इतनी यंग ये टीम है. साथ में आशिक कुरैन एक अनदर एक्सपीरियंस है. मनवीर सिंह के पास इंडियन नेशनल टीम सेटअप में होने का एक्सपीरियंस, वो स्टीफन के साथ से खेलते आ रहे हैं. जो इशू इंडिया को ओमान के अगेंस्ट हुआ था, स्पेशली 2 मैचेस में, अगर आपने वो दोनों रिव्यूज़ देखे होंगे, इंडिया ने दोनों गेम से 4-4-2 स्टार्ट किया था. एंड एक गेम में ब्रेंडन को विंग में डाला था, एक गेम में वो मिडफील्ड में थे. एंड इंडिया ने छेत्री ने गोल मारा था, बट इंडिया ने मेजॉरिटी चांसेस सेट पीसीस से बनाए थे. इंडिया ने चांसेस ज़्यादा बनाए नहीं. मैंने जैसे एक्सपेक्टेड गोल्स की बात करी कि इंडिया ने दोनों गेम्स में मिला के हमारा एक्सपेक्टेड गोल्स 0.69 है, जो बहुत कम है किसी भी एक नेशनल टीम के लिए. उसी गेम्स में आप ओमान का देखेंगे तो 3.01 है. आई थिंक टाइम फॉर आइगोस टीमैक फाइनली ट्राई अ न्यू फॉर्मेशन, मे बी 4-3-3 और 4-2-3-1. 4-2-3-1 मैं कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि इंडिया के पास एक प्ले मेकर आप कह सकते हो हितेश एंड मोहम्मद याशिर हैं, बट दोनों ही इंटरनेशनल सेक्टर में उनको सिस्टम में उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है. तो आप उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल सकते प्ले मेकिंग का. तो उनको थोड़ा से आप धीरे धीरे उनको इंडिकेट करा के आप बाद में कह सकते हो. तो आई थिंक पहले बात कर लेते हैं, अगर आइगोस टीमैक 4-4-2 सेटअप खेलना चाहेंगे, अगर वो सेटअप वो खेलते हैं जो उन्होंने ओमान के अगेंस्ट पहले खेला था, दोनों मैचेस 4-4-2 खेला है. एंड सेकेंड गेम में तो we can say we had more possession but we were outplayed by them. We did not create any chances, but we did had position in our own half. First leg we took a lead, but then symbolic defending last 10-15 minutes में, and we lost the match.
सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिवेंज वगैरह की कोई बात नहीं है. इट्स इम्पॉर्टेंट गेम फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन फुटबॉल बिकॉज वी हैव नॉट प्लेड many games in last 16 months. This is the first game in last 16 months. Of course, many countries have not played, but this is an important game because we're coming back in the international sector. I think it's also very important for Igor Stimac to get his system right. He has tried various system. Till now, we can't say what is his system, because with Stephen Constantine, 4-4-2, 4-2-3-1 was his system. But with Igor Stimac, we haven't seen that one particular system which he wants to play, which we can say that it is system of Igor Stimac. I think now with the young team, he has opportunity that he can show flexibility while creating a new system, or maybe he can create the old system but be done in a different way. So let's speak about 4-4-2. If India wants to set up 4-4-2 against Oman and against UAE both, because this is a combined India's combined video for both the games, considering India's perspective. We are not talking about Oman and UAE both. So let's move into the tactical side and talk about that. If India wants to play 4-4-2, what kind of players and what kind of system they can play using that 4-4-2 formation. Before starting the tactical side, let's talk about the goalkeeper situation India have right now. I think it's a time for Igor Stimac maybe to give both the goalkeeper equal opportunities. Aminder Singh, ISL winner, fantastic. लास्ट 2-3 सालों में उन्होंने मुंबई के लिए परफॉर्म किया है. सो मे बी 2 गेम्स आप 2 डिफरेंट गोलकीपर्स को ट्राई कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट आइदर ऑफ गुरप्रीत और अमिंदर in this game, and then give the alternative goalkeeper chance against UAE, which is just 4 days after the first game. So यहाँ पे 4-4-2 सिस्टम है. मैंने अभी के लिए गुरप्रीत सिंह को डाला है, अमिंदर सिंह को भी हम देख सकते हैं. तो ये मैं जो होप कर रहा हूँ, अगर द Igor Stimac सेम फॉर्मेशन और सेम स्टाइल खेलना चाहते हैं जो उन्होंने 2 गेम्स ओमान के अगेंस्ट खेला है, क्या वो यही फॉर्मेशन कोशिश करेंगे ओमान इन UAE के अगेंस्ट? थोड़ा लाइट हो जाता है 4-4-2 में, क्योंकि 2 ही सेंटर फॉरवर्ड आपके पास हैं, ईशान पंडिता, मनवीर सिंह. फिर बेंच पे आपके पास लेस्टन क्लासो जरूर होंगे, बट इसलिए थोड़ा ये रिस्की फॉर्मेशन है. एंड स्पेशली 4-4-2 में जो इशू इंडिया को हुआ था ओमान के अगेंस्ट, इंडिया गॉट डोमिनेटेड इन मिडफील्ड. आर 2-man मिडफील्ड गॉट डोमिनेटेड विद 3-man मिडफील्ड. सो पहले हम देख लेते हैं इंडिया का सेटअप क्या होने वाला है. आशुतोष मेहता, संदेश जिंगन, आदिल खान एंड आकाश मिश्रा की बैक 4 है. उसमें आपके मिडफील्ड में थापा एंड डॉर्विन बॉर्जेस हैं, साथ में विंग पे चांगटे एंड रायनीर फर्नांडिस है, ईशान पंडिता एंड मनवीर सिंह है. रायनीर फर्नांडिस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? बिकॉज जब 4-4-2 खेलते हैं Igor Stimac, तो वो एक विंग पे मिडफील्डर टाइप विंगर खिलाते हैं, नॉट अ टिपिकल विंगर. एंड रायनीर फर्नांडिस ने सेम रोल मुंबई सिटी FC के लिए खेला है, एंड उन्होंने Igor Stimac के अंदर भी मैचेस खेले हैं. एंड आगे ईशान पंडिता, मनवीर सिंह है. अगर आप 4-4-2 खेलेंगे तो आपके ये 2 आपके फॉरवर्ड होने वाले हैं. तो ये एक ओवरऑल 4-4-2 सिस्टम होगा. आप अगर स्क्रीन पे मूवमेंट देख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है. इसमें आप मनवीर सिंह जहाँ पे वो ATK मोहन बगान के लिए खेल रहे थे, राइट हैंड साइड वहाँ पे वो ऑपरेट करेंगे. चांगटे जहाँ पे अपने चेन्नई FC के लिए खेल रहे थे वहाँ पे ऑपरेट करेंगे. ईशान पंडिता वो सेंट्रल फिगर ऑप्शन देंगे. एंड थापा, बॉर्जेस मिडफील्ड में अलॉन्ग साइड फर्नांडिस, जो रायनीर फर्नांडिस टक इन करते हैं तो मिडफील्ड में ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे. एंड आकाश मिश्रा एक अटैकिंग आउटलेट आपको लेफ्ट में आपके पास है, एंड आशुतोष मेहता एक सॉलिड डिफेंसिव आउटलेट आपके पास राइट में है. तो ये एक 4-4-2 सेटअप इंडिया खेल सकती है. 4-4-2 सेटअप तो कुछ ना, इशू ये है कि पिछले टाइम में फुटबॉल इवॉल्व हुई है. अभी आप किसी भी थोड़ी बहुत इसने कमबैक भी किया है. स्पेशली आप देखेंगे तो रियल मैड्रिड ने जिडान इसको लेके आए हैं नए फॉर्म में. तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आउटडेटेड फॉर्मेशन है, बट ये फॉर्मेशन अब इतनी यूज़ नहीं होती है. स्पेशली बड़ी टीमें या जो प्रोग्रेसिव फुटबॉल खेलना चाहती है वो ये नहीं करती, बिकॉज हम 2 स्ट्राइकर्स खेलते हैं आपके पास. तो आप उम्मीद कर रहे हैं मेजॉरिटी टाइम कि लॉन्ग बॉल स्ट्राइकर्स पे को बिल्डअप करने के लिए 2 ही मिडफील्डर्स हैं. तो इस फॉर्मेशन के अपने बेनिफिट्स भी हैं. काफ़ी छोटी टीम्स जो होती हैं वो उसको यूज़ करती हैं, बट इसके अपने डीमेरिट्स भी हैं. बेनिफिट्स की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज इंडिया ने 4-4-2 खेला था ओमान के अगेंस्ट, एंड दोनों गेम्स हम नहीं कुछ खास कर पाए. पहला लेग तो फिर भी अच्छा था, सेकंड लेग तो वी गॉट आउट प्लेड. तो उस चीज़ को देखते हुए इस 4-4-2 के इश्यूज़ हैं. पहला जो इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि डिफेंस करते हुए आपका मिडफील्ड डोमिनेट होता है. तो अगर आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कुछ प्लेयर्स सिर्फ ओमान की एक टिपिकल फॉर्मेशन डाली है, 4-2-3-1 जो ज़्यादातर टीमें खेलती है. UAE भी 4-2-3-1, 4-3-3 खेलती है.
ओमान ने इंडिया के अगेंस्ट 4-2-3-1 खेला था, बाकी गेम से 4-4-2 खेला था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 4-2-3-1 खेलेंगे जो फॉर्मेशन के लिए चली है। इसमें आपके अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अगर डिफेंसिव थर्ड में मतलब इंडिया अगर डिफेंड कर रही है तो जो हमारे सेंटर बैक हैं वो दोनों उनके सेंटर फॉरवर्ड में अट्रैक्टेड रहते हैं, जो दोनों हमारे फुल बैक हैं वो उनके विंगर्स में अट्रैक्टेड रहते हैं। एंड आपके स्क्रीन पे से मूवमेंट अगर फुल बैक जो अटैक करते हैं उनके लिए चांगटे एंड रेनिर फर्नांडिस ने उनको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। एंड उनके 2 सेंटर बैक, हमारे 2 सेंटर फॉरवर्ड हैं। एंड देन आप मिडफील्ड में देखेंगे तो रॉलन बॉर्जेस, अनिरुद्ध थापा के अगेंस्ट 3 XXX आपको 3 प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं। तो एक मिडफील्डर आपका हमेशा फ्री रहेगा अल्टीन एंड अनलेस आपका मनवीर या ईशान पंडिता में से एक प्लेयर मिडफील्ड में ड्रॉप करता है। तो 4-4-2 में अगर वो करना पड़े तो आई थिंक थोड़ा बहुत फॉर्मेशन डिस्टेबलाइज हो जाती है। आप उसको 4-4-1 बना सकते हैं, बट देन मनवीर सिंह अगर ड्रॉप करते भी या ईशान पंडिता ड्रॉप करते भी, वो मिडफील्डर नहीं है, उनको वो स्पेस रीड करना, वो पासिंग लेन ब्लॉक करना उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा एक टिपिकल मिडफील्डर के कंपैरिजन में। इसमें ये डिफेंस करते हुए इसमें ये इश्यूज आते हैं टीम्स को रेगुलर बेसिस पे। अटैक करते भी यही इशू आते हैं क्योंकि आपके 2 सेंटर फॉरवर्ड हैं, अगर वो वाइड चले जाते हैं तो सेंटर में आपके पास कोई प्रेजेंस नहीं होती है बिकॉज आप नंबर 10 नहीं खेल रहे हैं। तो जैसे अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इफ़ इंडिया अटैक करती है तो ईशान पंडिता एंड मनवीर, ईशान सेंट्रली रहेंगे क्योंकि एक सेंटर फॉरवर्ड सेंट्रली रहना जरूरी है। मनवीर सिंह वही जो राइट विंग पर ऑपरेट करेंगे जिसके लिए वो एटीके मोहन बगान के लिए ऑपरेट कर रहे थे। अब आप देख सकते हैं आफ्टर मूवमेंट जो उनके 4 डिफेंडर हैं हमारे 3 प्लेयर्स के साथ इंगेज हैं एंड आशुतोष मेहता के साथ उनके एक विंगर है, सेम विद आकाश मिश्रा। बट अब मिडफील्ड में आप फिर से देखेंगे आप यहाँ पे डोमिनेट हो रहे हो। हाँ, अगर रेनिर फर्नांडिस खेलते हैं वो थोड़े बहुत फ्री रहेंगे, बट सेम ब्रेंडन थोड़े बहुत फ्री थे फर्स्ट लेग में जब वो लेफ्ट विंग पे खेल रहे थे, बट वो इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आपका अगर बहुत अच्छा कोई मिडफील्डर है जो मे बी अनिरुद्ध थापा, बट उस रोल में थापा खेलते नहीं, अगर उनको फ्री रोल देते हैं या रेनिर को आप मिडिल में खिलाते हैं या आप लालन मोहैया या जिक्सन को खिला सकते हैं, थापा को फ्री रोल देते हैं। पर थापा एक नंबर 8 है, वो एक प्ले मेकर नहीं है, उनको फ्री रोल चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं जब वो टैकल कर सकते हैं, बॉल को विन कर सकते हैं एंड पासिस खेल सकते हैं। तो इसमें आप मिडफील्ड जो डोमिनेट होता है अटैक डिफेंस दोनों में, और आपके पास फ्री बॉडीज़ नहीं है इसमें एंड स्पेशली स्पेसिस भी बहुत कम मिलती है ऑपरेट करने के पीछे, बिकॉज आपके जो विंगर्स एज अ विंगर्स खेल रहे हैं उनको मिडफील्ड में सम टाइम टक इन करना पड़ता है, तो विड्थ आपको इतनी नहीं मिलती कोई विंगर क्योंकि आप 4-4-2 फ्लैट खेल रहे हैं या डायमंड खेल रहे हैं, दोनों में से कोई फॉर्मेशन हो। पर मिडफील्ड में क्योंकि आप डोमिनेट हो रहे हो, जैसे आप देख रहे हो अभी स्क्रीन में अटैक डिफेंस दोनों में हमारे 2 मिडफील्डर वर्सेस 3 मिडफील्डर्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो विंगर्स एज अ विंगर खेल रहे हैं, रेनिर एंड चांगटे इन दिस केस, दे हैव टू टक इनसाइड टू हेल्प द मिडफील्डर्स। तो इसलिए ये फॉर्मेशन इतना आज के डेज में यूज़ नहीं होते बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीम्स आर यूजिंग 4-3-3, 4-2-3-1, so they have 3 midfielders and they try to dominate in midfield and win the midfield battle। जीतने के बाद वो मैच जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इशू है। इंडिया अगर 4-4-2 स्टार्ट करने की सोचता है अगेंस्ट ओमान एंड अगेंस्ट यूएई बोथ कंबाइंड, अगर आप दोनों मैच की बात करें, आप 2 नए सिस्टम ट्राई भी कर सकते हैं। 4-2-3-1 क्या इंडिया ट्राई कर सकता है? आप बता सकते हैं कि आप किसको एज अ नंबर 10 देखते हैं इस टीम में? हितेश शर्मा, रेनिर फर्नांडिस एंड मोहम्मद यासिर, आपके 3 ऑप्शन हैं। मे बी आप समबडी ईस्टर्न क्लासों को भी नंबर 10 क्लास, पर नंबर 10 नहीं है, ट्रेडिशनल नंबर 10 नहीं है। आपके दोनों प्राइमरी नंबर 10 इंजर्ड हैं। सो आई थिंक जो मैं रिकमेंड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंडिया यहाँ पे 4-3-3 फॉर्मेशन स्टार्ट कर सकता है। इसमें आपके पास आप याशीर मोहम्मद को एज अ मिडफील्डर एडवांस नंबर 8 खिला सकते हैं विद थापा एंड बॉर्जेस इन मिडफील्ड। आपका डिफेंस सेम है एंड विंग में थोड़े चेंजेस किए हैं। मैंने 4-3-3 के हिसाब से विंगर सेलेक्ट किए हैं। 2 विंगर्स जो गोल स्कोरर हैं, दे कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड they have done well in this past season of Indian Super League। तो इन फॉर्म प्लेयर्स मेरे डाले, मैं रेनिर और चांगटे को हटा के मैंने विपिन सिंह एंड लिस्टन क्लासो को लेके आया हूँ राइट हैंड साइड पे। दोनों ही इन फॉर्म है। इसमें आप क्योंकि आप 4-3-3 फॉर्मेशन खेल रहे हैं तो आपके 3 मिडफील्डर्स, ट्रेडिशनली 3 मिडफील्डर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमेशा जब भी आपका स्पेस हो या मूवमेंट देख सकते हैं कि विपिन सिंह ऑपरेट कर सकते हैं, लिस्टन क्लासो ऑपरेट कर सकते हैं दोनों विंग से। ऑल्सो मनवीर सिंह को थोड़ी फ्रीडम और स्पेस मिल जाती है ऑपरेट करने की जब आप सिंगल स्ट्राइकर की तरह खेल रहे हैं। एंड उन्होंने एटीके मोहन बगान के लिए साथ दिखाया है कि ही कैन नाउ बुली डिफेंडर्स
कैन ड्रिबल, कैन शूट, कैन स्कोर विद बोथ फीट, तो थोड़ा बहुत उनको फ्रीडम मिल जाती है, अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे। राइट हैंड की तरफ वो दोनों विंग्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड उसके बाद रोलन बॉर्जेस को एज अ बेस डिफेंसिव मिडफील्डर आप रख के थापा एंड मोहम्मद यासिर को आप मिडफील्ड में यूज़ कर सकते हो to dominate the opponent's midfield, because then you also have Sandesh Jhingan, Adil Khan, Bhojis making the back three, Ashutosh Mehta also providing defensive cover from right side, giving Akash Mishra free role on the left hand side. इसके आप ये तो सिंपल अगर फॉर्मेशन है क्या वो सेटअप। अगर इसके एडवांटेज आप देखते हैं, पहले हम बात करते हैं कि डिफेंसिव सेटअप में इंडिया के पास क्या एडवांटेज है इस सिस्टम में। अगर आप टिपिकल विंगर्स के साथ खेल रहे हैं तो आप विंग में आपका टू आपके फुल बैक विंग एज अ यूनिट करते हैं, तो उसका बेनिफिट आप देख सकते हैं। सेम सेटअप दोनों सामने 4-2-3-1 रखा है, उसके कंपेरिजन हमारी 4-3-3 है। अब अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो मिडफील्ड का एरिया है वहाँ पे अगर न्यूमेरिकल एडवांटेज नहीं है हमारे पास, बट हम एटलीस्ट आउटप्लेड नहीं होंगे, डोमिनेट नहीं होंगे। उनके 3 मिडफील्डर्स हैं, हमारे 3 मिडफील्डर्स हैं। मनवीर सिंह अगर थोड़ा बहुत 1-2 पासिंग लेन ब्लॉक कर सकते हैं तो इंडिया मिडफील्ड में बॉल जीत सकता है, क्योंकि बस 2-3 मिडफील्डर है। रोलन बॉर्जेस बहुत अच्छे बॉल विनर हैं, अनिरुद्ध थापा बहुत अच्छे बॉल विनर है। विंग पे आप देखेंगे आकाश मिश्रा के पास प्लेयर है, बिपिन सिंह, तो सबके 2 vs 2 सेम वे आशुतोष मेहता एंड लेस्टन क्लासो के पास भी है, एंड संदेश जिंगन एंड आदिल खान के पास एक सेंटर फॉरवर्ड है जिसकी उनको हैंडल करना है। इस फॉर्मेशन में आपके पास आउटलेट मिल जाता है अगर काउंटर अटैक मारना हो। ऑफकोर्स बिपिन सिंह एंड लेस्टन क्लासो एक डिफेंसिव ड्यूटी कर रहे हैं, बट अगर आपके पास बॉल आती है तो आप उन दोनों की पेस एंड ट्रिकरी यूज़ करके आप एक काउंटर अटैक स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आप मिडफील्ड में भी बॉल जीत के बॉल रख के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अटैक में अगर डिफेंस में ये एडवांटेज है तो उसके अटैक में भी अपनी एडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि 4-2-3-1 या 4-3-3 के अपने लिमिटेशंस नहीं है, लिमिटेशंस हैं, बट आप वो कवर कर सकते हैं। 4-4-2 में भी कवर कर सकते हैं, बट वो सक्सेस इंडिया को मिली नहीं है उस फॉर्मेशन से इन रिसेंट टाइम, स्पेशली अंडर इगोर स्टीमैक। तो इसलिए एंड स्पेशली अभी प्लेयर्स भी आपके पास, जिस तरह आपके 2 सेंटर फॉरवर्ड्स आपके पास हैं, तो आप उसमें से एक को एज ए बेंच ऑप्शन आप रखना चाहते हो। अब आप देखेंगे अगर अटैक में अगर इंडिया अगर अटैक करती है तो आपके पास लेस्टन क्लासो एंड विपिन सिंह के 2 ट्रिकरी विंगर्स हैं, वो हमेशा अपने फुल बैक को ऑक्यूपाई रखेंगे, जिसका मतलब ये है कि आकाश मिश्रा एंड आशुतोष मेहता के पास एक प्लेयर होगा। सो इफ दे कैन बीट देयर प्लेयर दे विल हैव दैट स्पेस इन राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड विंग टू ऑपरेट। एंड सेम वे मिडफील्ड में अगर आप देख सकते हैं उनके 3 मिडफील्ड का हमारे 3 मिडफील्डर्स हैं। इसमें अगर आप ये देखेंगे इसका एडवांटेज ये है कि अगर एक भी मिडफील्ड में अगर आप बॉल यूजिंग योर ड्रिबलिंग एबिलिटी ट्रिक्स आप अगर एक मैन को बीट करते हो आपको स्पेस आ सकती है। वो तब नहीं आती जब 2 vs 3 हो, आप एक को बीट करोगे दूसरा बंदा आ जाएगा। यहाँ पे बिकॉज मैन ऑन अगर आप जाते हो तो आपके पास मिडफील्ड में स्पेस बन सकती है। आपके पास सपोर्टिंग रोल में मनवीर सिंह अराउंड विपिन सिंह, लेस्टन क्लासो दोनों हैं। तो एंड इन सबको स्पेशली एक और चीज़ 4-2-3-1 में है कि आप विंगर्स खेल रहे हो, एरिया वाइज खेल रहे हो, तो जो जोन्स होती हैं, जोनल मार्किंग होती है, अटैकिंग जोन्स होती हैं, आपके हर जोन में प्लेयर रहता है, क्योंकि 4-4-2 में आप 2 फॉरवर्ड खेलते हैं तो समटाइम फॉरवर्ड्स को विंग में भी जाना पड़ता है, और सारे फॉरवर्ड्स विंग पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो एक ये सेटअप इंडिया आई थिंक ट्राई करना चाहिए इंडिया को, बिकॉज 4-4-2 में सक्सेस इंडिया को नहीं मिली है। 4-3-3 जिस तरह की टीम हमारे पास है, मिडफील्ड में हमारे पास डेप्थ है, लालन मोहिया हमारे पास है, जिक्सन सिंह हमारे पास हैं, हितेश शर्मा हमारे पास है, एंड आपके पास नंबर 10 एक डोमिनेट ऐसे नंबर 10 नहीं है ब्रैंडन सहल जैसे, तो क्या आप 4-2-3-1 भी आप खेल सकते हैं। इसके अलावा अगर इंडिया को खेलना भी है 2 स्ट्राइकर फॉर्मेशन, इंडिया अल्टरनेट फॉर्मेशन 3-5-2 भी खेल सकते हैं, बट अगेन आपका सेंटर बैक ज़्यादा नहीं है, क्या आप वो रिस्क लेना चाहोगे। आई थिंक एक और फॉर्मेशन हम देख सकते हैं इंडिया की तरफ से, 4-2-3-1 हो सकती है। तो अगले सेक्शन में बात करेंगे 4-2-3-1 की, एंड इंडिया कैसे सेटअप कर सकता है यूएई के अगेंस्ट 4-2-3-1 फॉर्मेशन में या ओमान के अगेंस्ट। अगर इगोर स्टीमैक 4-3-3 नहीं खेलना चाहते तो 4-2-3-1 खेल सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इंडिया अगर सेटअप करता है
4-2-3-1 में थोड़े मैंने पर्सनल चेंज किए हैं। अमरिंदर सिंह आए हैं गुरप्रीत सिंह संधू की तरह। डिफेंस सेम है, आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बट आई थिंक प्रीतम कोटाल को आप राइट विंग पे डाल सकते हैं आशुतोष मेहता की जगह। अनुज थापा, रोलिन बोर्जिस का मिडफील्ड है, इसकी जगह आपके पास ऑप्शन हैं रोटेट करने के लिए। ललन मोहिया को ट्राई कर सकते हैं, जिक्सन सिंह को ट्राई कर सकते हैं मिडफील्ड में। आशिक कुरैन को मैं लेके आया हूँ लेफ्ट विंग पे, चांगटे एंड बिपिन सिंह की दोनों की जगह यहाँ पे एक ऑप्शन अल्टरनेटिव मैंने देने की कोशिश की है। लेस्टन क्लासो राइट विंग पे इंडिया में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, आप हालिद नाजरी को भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी फॉर्म में है, या आशिक की जगह हालिद नाजरी को ट्राई कर सकते हैं। आगे मनवीर सिंह है, आप ईशान पंडिता एंड मनवीर सिंह में दोनों में से कोई को खिला सकते हैं, बट मनवीर सिंह एक्सपीरियंस प्लेयर है तो मैं उनको मौका देना चाहूँगा, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से इंडियन सेटअप के पार्ट हैं एंड उनके पास वो डिज़र्व करते हैं टू लीड द इंडियन टीम इन स्पेशली एज अ स्ट्राइकर ना, बिकॉज उन्होंने 3-4 साल में बहुत हार्ड वर्क किया है। ईशान पंडित आपको बेंच से ऑप्शन दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हितेश शर्मा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो नंबर 10 की तरह आ रहे हैं। उनको कैलकुलेटिव रिस्क लेने हैं, कब मिडफील्ड में ड्रॉप करना है टू हेल्प हिज मिडफील्डर्स, कब अटैक में मनवीर सिंह के साथ जाना है टू हेल्प हिम, बिकॉज वो मनवीर सिंह का एस्केलेट होने भी अलाउ नहीं कर सकते हैं। एंड आपका आशिक कुरैन के फॉर्म में एक डायरेक्ट ऑप्शन आपके पास है अटैक करने के लिए। लेस्टन क्लासो भी एक ट्रिक, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर लेस्टन क्लासो स्पेशली इन इंटरनेशनल सर्किट, बिकॉज उनके पास वो पेस और एबिलिटी है अपने मैन को बीट करके अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, जो हमने ISL में देखी थी। तो ये एक इंडिया का सेटअप हो सकता है अल्टरनेटिव। आई थिंक ये 2 सेटअप इंडिया के पास हैं। मैं अगर इस करंट टीम को देखूँ तो 4-3-3 जिस तरह के मिडफील्डर्स इंडिया के पास हैं, आई थिंक इंडिया शुड ट्राई टू गेट play their best 3 midfielders and dominate in midfield against team like UAE and Oman. It's not easy, but that's the way to go ahead. अगर हमारा मिडफील्ड अच्छा खेलता है तो हमारी टीम एज अ टीम अच्छा खेलेगी। आई थिंक 4-3-3 में आप प्रोटेक्शन भी देते हो अपने मिडफील्ड को, अपने डिफेंस को, एंड आप अपने उस मिडफील्ड में अगर अनुज थापा आपके पास हो, या आपके पास मोहम्मद याशीर हो, या हितेश शर्मा हो, तो उनके पास एबिलिटी है अटैक में भी कंट्रीब्यूट करने के लिए। एंड आपके विंगर्स को भी थोड़ी बहुत फ्रीडम मिल जाती है कि हर बार उनको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो मिडफील्ड 3 है वो भी कभी ना कभी उनको विंग में भी उनको कवर दे सकता है। तो आई थिंक इस टीम जो अनाउंसमेंट टीम आइगॉस टीमैक ने करी है, उसके साथ आई थिंक 4-3-3 का सेटअप काफ़ी अच्छा बैलेंस इंडिया के लिए रह सकता है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप कौन सा सेटअप खेलना चाहेंगे UAE एंड ओमान के अगेंस्ट, स्पेशली कंसिडरिंग एक न्यू इंडियन टीम है। आप लोग क्या प्लेइंग 11 पिक करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। इसके अलावा दोनों मैच की प्रिडिक्शन क्या होगी वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अब हम होप करते हैं कि दोनों मैचेस टीवी पे लाइव हों। एज ऑफ नाउ ऑन 22 मार्च 4 PM अभी तक कोई कंफर्मेशन टेलीकास्ट का नहीं आया है, बट एज यू माइट हैव रेड ऑन khelna.com दैट AFF इज इन फाइनल स्टेज टू फाइनलाइज द टेलीकास्ट फॉर ओमान गेम। UAE गेम आई थिंक टेलीकास्ट के राइट्स मिल चुके हैं, बट चैनल अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। सो होपफुली हम दोनों मैचेस को लाइव अपने टीवी पे देख पाएँ। फेस्टिवल पीरियड है, बिकॉज होली आ रहा है, एंड आई थिंक एक मैच होली के दिन भी है, रात को 9:45 किक ऑफ हो रहा है, तो आई थिंक इतना कोई आप लोग मिस नहीं करेंगे। सो मैं होप करता हूँ कि आप लोग आने वाले इंडिया के दोनों मैचेस एंजॉय करेंगे। आपके पास हमारे लिए कोई फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं आपको मिलूँगा अब अगले टेक्निकल वीडियो में। थैंक यू।